اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج سے ہم انشاءاللہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 7 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ بہت ہی مشہور سورہ ہے، اور جس طرح عرض کیا تھا پچھلے درس میں کہ اکثر مفسرین کی رائے میں پوری کی پوری سورت مکی ہے، لیکن بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اس کا آخری جو حصہ ہے وہ مدنی ہے، آیتوں کے مضامین کے لحاظ سے۔ انشاءاللہ اس کے پر بھی جو ہے ہم بات کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان آیات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اور اس خطاب کے اندر ہمیں سیرت نبوی کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے آغاز میں جن مراحل سے آپ گزرے ان کا بھی اس کے اندر جو ہے احاطہ ہوتا ہے۔ فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اس سے پہلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم اور تلقین کی تھی کہ آپ رات کے ایک حصے کے اندر آپ تہجد کی نماز ادا کریں اور قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ پھر فرمایا آیت نمبر 7 میں بے شک آپ کے لیے دن کے اندر بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں، بہت زیادہ سرگرمیاں ہیں۔ تو سبحن تو اصل میں استعمال ہوتا ہے سوئمنگ کے لیے، اور جب انسان سوئمنگ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان مصروف رہتا ہے، تو میٹافوریکلی یہ لفظ استعمال فرمایا قرآن پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ دن کی مصروفیات انسان کے لیے گویا اس طرح ہوتی ہے کہ انسان جس طرح سوئمنگ کرتا ہے، نہاتا ہے، تو اس وقت وہ اس کی مصروفیات جو ہیں وہ دوسری وہ معطل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس میں فرمایا کہ آپ نے اپنے دن کی جو مصروفیات ہیں ان کو بھی کنٹینیو کرنا ہے، یعنی جو دنیاوی معاملات ہیں، آپ کے ذاتی معاملات ہیں، فیملی معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے، ان کی تعلیم ہے، اپنے روزی معاش کے جو مسائل ہیں ان کے اندر بھی آپ نے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے۔ تو اس آیت پاک سے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم اور تلقین کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ایک درس ہے کہ وہ اپنے دن کا حصہ جو ہے اپنی گھریلو ضروریات کی جو مصروفیات ہیں اس کے اندر وہ رکھیں، یعنی اپنے آپ کو دن کو بھی ایکٹیو رکھیں۔
मकसद ये है कि दिन के अंदर इबादत जो फ़राइज़ हैं उनको अंजाम लाएं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दिन को मुआश के लिए और मुआशरत के लिए बनाया है, उसके अंदर भी आप अपने आप को जारी और महव रखें। वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। अल्लाह तबारक व तआला के नाम का आप ज़िक्र करें और उसकी तरफ आप हमातन मुतवज्जे हो जाएं। दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तबत्तल, और इसका जो रूट है वो बा, ता और लाम है, बतल। और इसका मकसद क्या होता है कि इंसान तमाम जो एक्टिविटीज हैं और मसरूफियात हैं उनसे अपने आप को डिटैच करके एक खास मसरूफियत के अंदर अपने आप को जो है इंसान महव कर दे। और ये इसका जो मजहबी मफहूम है इस्लाम के अंदर वो ये है कि इंसान अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए मसरूफ रख दे। इसका एक और माना भी है कि वो ख़वातीन जो अपने आप को इस्तिवाजी ज़िंदगी की बजाय मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की इबादत के लिए मसरूफ रखती हैं और दुनिया के ताल्लुकात से अपने आप को डिटैच करती हैं, तो इसका इतलाक दुनिया की दो मशहूर ख़वातीन की पर होता है। सबसे पहले हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के जिन्होंने मर्दों के साथ ताल्लुकात के बारे में अपने आप को मुकम्मल तौर पर निकाह से और शादी से डिटैच कर लिया था, और ये ताबीर थी उनकी वालदा की कि अल्लाह तबारक व तआला तू मुझे जो भी औलाद अता फरमाएगा उसको मैं बैतुल मुक़द्दस की खिदमत और इबादत के लिए वक्फ कर दूंगी। तो यही हाल था कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उनकी वालदा ने मस्जिद की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था और एक कोने में वो इबादत करती थी, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनकी किफ़ालत की थी। और जब ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास जाते थे तो उनके पास मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के खाने और फल होते थे, और ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरानगी से पूछते थे कि मरियम तुम्हारे पास ये खाने कहाँ से आए हैं? तो हज़रत मरियम जवाब देती थी कि ये अल्लाह की तरफ से मुझे खाने मिले हैं। तो गोया एक मौजज़ा अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया था, उनकी एक करामत थी कि गैब से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके खाने-पीने का सामान जो है वो कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इज़दिवाजी ताल्लुकात से मुनक़ते करके कंप्लीटली अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और उसकी घर की खिदमत के लिए उन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया था। तो ये बतूल के माने एक ये है। बतूल का एक दूसरा टाइटल वो दिया गया है किसको? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का एक टाइटल है बतूल। और उनको बतूल का टाइटल इसलिए दिया गया है कि उन्होंने, अगरचे उनकी शादी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को ख़वातीन से और दुनियावी मामलात से डिटैच कर लिया था और अपनी तवज्जो अपने ख़ावंद की खिदमत, अपने बच्चों की तरबियत और जो भी बाकी वक़्त मिलता था, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी के लिए वक़्फ़ कर दिया था। तो ये रूट उसी से है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अपने रब के नाम का आप ज़िक्र करें, यानी तस्बीह पढ़ें और उसकी इबादत के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर दें। क्या इस्लाम अपने पैरोकारों से इस बात का मुतालबा करता है? इंसानों के अंदर कुछ तबीयतें ऐसी फितरत की होती हैं कि जिनका मैलान, रुझान अल्लाह की इबादत की तरफ ज़्यादा होता है। तो उनके लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर गुंजाइश छोड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ कुरान के अंदर, इस्लाम के अंदर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर और सुन्नतों के अंदर
इस बात की मजम्मत की गई है कि इंसान जो है दुनियावी ताल्लुकात से लाताल्लुक हो जाए। ऐसे सहाबा कराम की मिसालें हैं कि जिन्होंने रात को इबादत करना और दिन को रोजे रखना, खवातीन से ताल्लुकात मुनक़ती करना, किसी ने कहा कि हम जिंदगी भर गोश्त नहीं खाएंगे, और इस तरह की पाबंदियां उन्होंने लगाई, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंद फरमाया और फरमाया कि मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला और इबादत करने वाला हूँ, लेकिन मैं निकाह भी करता हूँ और मैं आराम भी करता हूँ और मैं खाना पीना भी करता हूँ, तो ये मेरी सुन्नत है। फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो शख्स मेरी सुन्नत से रूगर्दानी करता है वो मुझसे नहीं है। तो इस्लाम के अंदर एक बात बहुत अहम है कि इस्लाम को जो दीन कहा गया है कि वो एतदाल का, मियाना रवी का, मॉडरेशन का दीन है, कि तमाम हुकूक जो है उनका ख्याल रखा जाए। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी जो निगाहें हैं, आंखें हैं, उनका भी तुम्हारे ऊपर हक है कि तुम सारी रात को अगर जागते रहोगे तो दिन को तुम्हारी आंखों पर उसका असर पड़ेगा, इसलिए तुम्हारे बदन का, तुम्हारी आंखों का तुम्हारे ऊपर असर है, उसका ख्याल रखें। रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अपने आप को मुतवज्जे करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो जो रब है वो मशरिक और मगरिब का है, यानी पूरी दुनिया का वो अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। फत्तखिज़हु वकीला, और वकील जो हम दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, आप समझें कि इसका माना जो है बड़े पैमाने पर ये मफहूम है कि अपने मामलात को अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द कर देना, ये अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना और अल्लाह से इल्तिजा करना और अल्लाह तबारक व तआला से मदद और इस्तिआनत और अपनी हाजतें जो है उसके सामने पेश करना। ये अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है वो तालीम दे रहा है कि हम भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अपने आप को मुतवज्जे करें और उसके सामने अपनी ज़रूरियात को हम पेश करें। इसके बाद गुफ्तगू का जो सुखन है वो मुख्तलिफ हो रहा है। अभी तक जो था वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इबादत और अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक, लेकिन इसके बाद गुफ्तगू जो है उसका रुख जो है वो तब्दील हो रहा है। फरमाया वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। और ये आयत भी हमें सीरत पाक के उस दौर की जो है एक सूरत पेश करती है कि सूरह मुजम्मल जब नाजिल हुई थी तो उस वक्त लोगों की मुखालफतें और उनकी सख्तियां जो हैं वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो सहाबा कराम थे वो उनको बर्दाश्त कर रहे थे। इस आयत में अल्लाह क्या फरमाता है, वस्बिर अला मा यक़ूलून, आप सब्र इख्तियार करें उन बातों पर कि जो आपके खिलाफ वो लोग कह रहे हैं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कलाम पेश करते हैं, उनको अल्लाह का कलाम सुनाते हैं और जवाब में वो क्या कहते हैं कि ये नाउज़ बिल्लाह काहिन हैं, जादूगर हैं, शायर हैं, या इनके ऊपर जिन्नात का असर हो गया है। तो इन तमाम बातों को, इन तमाम टॉन्ट्स को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सब्र इख्तियार करें। और वाकई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सब्र था कि जिसने बहुत ही मदद की और आपके पैगाम को पहुंचाने में और उनकी मुखालफतों को बर्दाश्त करने में। वरना उनकी मुखालफतों को टिट फॉर टैट का अगर मामला होता तो ये दावत आगे न चलती, क्योंकि कन्फ्रंटेशन होती, वायलेंस होता और इस दावत को जो है वो नुकसान पहुंचता है। इसलिए जो लोग के दीन की तरफ लोगों को दावत देते हैं, दाई होते हैं,
उलमाए कराम हो, और ख़ास तौर पर वो लोग कि जो अपने आप को इस कॉज़ के लिए वक़्फ़ करते हैं। एक बड़ी मतलब है कि आप समझे सलाहियत और खूबी होनी चाहिए कि उनको मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, और उसको सब्र से वो करें कि ये अल्लाह का रास्ता है, और इस रास्ते में मुश्किलात जो हैं वो पेश आएंगी, और पार्ट ऑफ द जॉब है। तो अल्लाह के रसूल सब को अल्लाह ताला वसीयत फरमा रहे हैं कि आप उनके बातों पे सब्र फरमाएं। वहजुरहुम हजरन जमीला। ये ये हजर जो है इसके माने फिराक के हैं, डिपार्टिंग के, किसी चीज को छोड़ना, इसी से हिजरत है वैसे, कि आप उनको छोड़ें अच्छे तरीके से, यानी उनसे किनारा कशी इख्तियार फरमाएं, हजरन जमीला। उसके अंदर बेरुखी ना हो, बल्कि आपके चेहरे अनवर पर मुस्कुराहट हो, कि आप उनसे अपने आप को अलग थलग कर रहे हैं, डिटैच कर रहे हैं, बेरुखी इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी ऐसा पहलू ना हो कि जिसके अंदर तकब्बुर हो। यानी आपको कुरान पाक में ये बात आती है कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, व इदा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब उन्होंने ऐसे लोग खिताब करते हैं कि जिनके अंदर इल्म की कमी होती है, अखलाक लिहाज से जो है वो कमज़ोर होते हैं, और उन्हें तरबियत की ज़रूरत होती है, रूहानी तौर पर वो कमज़ोर होते हैं। जब वो खिताब करते हैं, आपसे डील करते हैं, तो उनकी गुस्ताखी को आप हुस्न सलूक से जो है उसको ट्रीट करें। ये अल्लाह के रसूल से हमको अल्लाह ताला ने तालीम फरमाई, और कुरान पाक में इसके बारे में मकामात पर जो है जिक्र हुआ है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह उनकी इज़ार सानी और तकलीफों पर सब्र फरमाते थे। इसके बाद फरमाया वज़रनी वल मुकद्दिबीन उलिन नअमति वमहहिलहुम कलीला। ये आयत नंबर 11 में भी बहुत सी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र, सब्र जमील और हजर जमील की तालीम दे रहा है, तो ये जो लोग मुखालफत कर रहे हैं और आपको तंग कर रहे हैं, उनका क्या होगा वैसे? क्या उनको इसी तरीके से छोड़ दिया जाए कि वो उसको जो रवैया है वो उसके ऊपर जो है ना कुछ उनका मुआवजा ना हो? तो अल्लाह ताला ने तसल्ली दी है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वज़रनी वल मुकद्दिबीन, और आप मुझे छोड़ दें, और जो लोग आपके पैगाम को झुटला रहे हैं और रुकावटें डाल रहे हैं, मुझे और उनको आप छोड़ दें। ये मेरा मामला है, और उनका मामला है कि उनके साथ मैं किस तरह डील करता हूँ। और इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की एक स्कीम बता रही है, प्लानिंग, कि अल्लाह तबारक व तआला जो लोग उसकी दावत के राह में रुकावटें खड़ी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको किस तरह ढील देता है। और ढील देने का मकसद ये है कि उनमें से कुछ शायद जो हैं वो समझ जाएं, और वो उस रविश से बाज आ जाएं। और ढील देने का एक मकसद ये भी है कि अगर वो इस रविश पे जारी रहेंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उनकी पकड़ फरमाएगा, और उन उसकी गिरफ्त से उनको कोई नहीं बचा सकेगा। लेकिन सिर्फ मुकज्जिबीन नहीं कहा, झुटलाने वाले, उलिन नअमा थे, वो लोग कि जो मालदार हैं, और मालदारी के साथ साथ उनके अंदर क्या है कि उस दौलत के ऊपर नाज और नखरा भी है, और उस दौलत के नाज और नखरे की वजह से वो आपकी दावत को और आपको हकीर समझते हैं, और दूसरे लोगों को भी वो लोग हकीर समझते हैं। आपने देखा होगा कि आम तौर पर जब हम नेमत का जिक्र करते हैं तो नून के नीचे जेर होती है। तो कई लोगों को ये हैरानगी होगी कि यहाँ नून के ऊपर जबर क्यों है। तो क्या इसके मीनिंग भी जो है वो वही है जो नेमत के हैं? जी हाँ, इसके मीनिंग भी वही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है।
जनाब अल्लामा रागिब इस्फहानी ने नेमत का जो लफ्ज है उसके जो मीनिंग्स है वो तकरीबन 13 उन्होंने लिस्ट की है। 13 जो है मीनिंग्स उन्होंने लिस्ट की है, जिसमें एक मीनिंग नेमत के उन्होंने लिखे हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी आप अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। और जब आप नेमत का माना इस्तेमाल करते हैं जेर के साथ, तो उससे मुराद ये होता है कि वो तमाम नेमतें, आसाइशें इंसान को जिंदगी के साथ साथ जो इंसान को मिलती हैं, आफियत होता है, सुकून है, सेहत है, ईमान है, ये तमाम की तमाम जो बातें हैं, ये फेवर्स, ब्लेसिंग, नेमत की कैटेगरी में आती है। और जब आप नून को जबर के साथ पढ़ते हैं, तो ये कुरान पाक में दो जगहों पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। एक ये सूरह मुजम्मिल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा सूरह दुखान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल किया है। और वो इस्तेमाल किया है फिरौन और उसके लश्कर वालों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कम तरकू मिन जन्नातिन व अयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नामतिन कानू फीहा फाकिहीन। ये सूरह दुखान की आयत नंबर 25 से 27 के अंदर है। तो दुखान नेमा जो है, अगर नून के ऊपर जबर के साथ आएगी तो उसका मतलब है लग्जोरियस लाइफ, और ऐसी लाइफ, ऐसी नेमतें कि जिसके ऊपर इंसान अल्लाह का शुक्र नहीं करता और नेमतों की कदर नहीं करता, वो नेमतें हैं। और फिर क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को खिताब फरमाएगा, तो उस वक्त उनको याद दिलाएगा कि वो जो नेमतें थी जिस पर तुम दुनिया में इतराते थे, वो जायल हो गई। तो नेमत अगर नून के कसरे के साथ, जेर के साथ हो, तो वो अल्लाह की नेमतें हैं जो दुनिया में मिली हैं, आखिरत में भी हों, और वो नेमतें जो है वो चलती रहे। इसी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक। अल्लाह ताला मैं आपसे पनाह मांगता हूँ आपकी नेमतों के जायल होने से। तो ये दुआ भी हमारी दुआओं का जो है वो हिस्सा होना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, आप मुझे छोड़ दें और उन झुटलाने वालों को कि जो ऐश इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, वमहिलहुम कलीला, और उनको थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ी सी मोहलत दे दे। तो ये इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला जो है वो क्या कह रहे हैं कि थ्रेट कर रहे हैं, और इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला एक टाइम फ्रेम दे रहे हैं कि अगर ये लोग बाज नहीं आएंगे तो इनका अंजाम अनकरीब बहुत ही बुरा होगा। और ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है, और मुसलमानों का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो वादा फरमाया है वो वादा पूरा होगा। यानी ये इनकी नेमतें भी जायल होंगी, और इनकी जो चौधराहट है और जो इनका जो इक़्तिदार है वो भी बुरे अंजाम से दुचार होगा। इन्ना लदैना अनकालन व जहीमा, हमारे पास ऐसे लोगों के लिए क्या है? अनकाल। अनकाल नून काफ लाम से जो बेड़ियां, जंजीरें, चेन इंसानों को हाथों में, पाँव में, गले में डाली जाती हैं, उससे मुराद ये है। वजहीमन, और जहीम जो है ये जहन्नम की एक किस्म है अजाब की। कि फरमाया कि ऐसे लोगों के लिए हमारे पास क्या है? भेड़िया है जिसके अंदर हम उनको जकड़ेंगे, उनकी गर्दनों से, उनके हाथों से, उनके पैरों से। और जिस इंसान को बेड़ियों में जकड़ा जाता है, वो इंसान कौन होता है? वो मुजरिम होता है। मुजरिम को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि उनके लिए दुनिया के अंदर भी रुसवाई है कि अल्लाह ताला उनको उनका मुआवजा फरमाएंगे अनकरीब, और उनका इस हाल में अगर वो मरेंगे तो उनका अंजाम आखिरत में भी बुरा होगा।
تو इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो पेशेनगोई फरमाई है और मुसलमानों को जो तलकीन फरमाई है उसका जिक्र है, और इसके अंदर लाइफ आफ्टर डेथ और ख़ास तौर पर जो अज़ाब है उसका भी जो है वो ज़िक्र है। मज़ीद उनकी जो सज़ा है उसका ज़िक्र फरमाया, वतआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा, और खाना उनको ऐसा दिया जाएगा कि ज़ा गुस्सतिन, आप खाना अगर आप खाएँ तो वो आपके हलक के नीचे से न जाए। कितना भी लज़ीज़ किस्म का खाना हो, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो कि जिसको आप खाने को स्वैलो न कर सकें, तो उसको कहते हैं तआमन ज़ा गुस्सतिन। एक तो उनको खाना जो दिया जाएगा, वो रद्दी किस्म का खाना होगा। वो क्या खाना होगा कि उनकी जहन्नम के अंदर जो दूसरे लोग होंगे, उनका जो पीप होगा, उनका जो खून होगा, वो सारा उनको खिलाने के लिए, और वो तमाम ग़िलाज़त की चीज़ें उनको दी जाएँगी, लेकिन वो खाना उसको वो स्वैलो नहीं कर सकेंगे। तो अगर खाने के अंदर इंसान को अ, मतलब है कि मज़ा ना आए और इंसान को तकलीफ़ हो, तो ये भी एक किस्म की बीमारी है और एक किस्म का एक मुशक्कत है। अल्लाह ने फरमाया कि ये भी उनके लिए हमने तैयार किया है। तआमन दा गुस्सतिन, ऐसा खाना कि जिसको वो स्वैलो नहीं कर सकेंगे, डिफ़िकल्टी होगी, व अज़ाबन अलीमा, और दर्दनाक अज़ाब भी। ये तमाम चीज़ें उनके इंतज़ार में हैं मरने के बाद, अगर वो इस हाल के अंदर मरते हैं, तौबा नहीं करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला इसको कंटिन्यू करते हैं, क़यामत की एक मंज़रकशी है जो हमें बताई गई है, और कुरान पाक के मुतअद्दिद मकामात पर जो है इसका ज़िक्र होता है। फरमाया, यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महीला। उस दिन को याद करें, उस दिन को याद करें कि जब ज़मीन जो है वो काँपने लगेगी। यानी रजफ़, इसका लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है हज़रत आद अलैहिस्सलाम, हज़रत समूद अलैहिस्सलाम, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम, इनकी कौमों के लिए इस्तेमाल हुआ है। कहीं पर साइहा है, कहीं पर रजफ़ा है। ये रजफ़ा के माने में है कि ज़मीन काँपने लगती है, जैसे ज़लज़ला आ जाता है, इसी तरीके से फरमाया कि उस दिन को याद करें कि जिस दिन ज़मीन काँपने लगेगी, वल जिबालो, और पहाड़ भी काँपने लगेंगे, और फरमाया वकानतिल जिबालु कसीबम महीला, और पहाड़ क्या बन जाएँगे? पहाड़ जो हैं वो बन जाएँगे, कसीब कहते हैं टीले को, रेत का जो टीला होता है, उसकी तरह पहाड़, यानी बड़े मज़बूत पहाड़ हैं। और अब अगर आप ख़ास तौर पर जब आप जाते हैं हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत के लिए, आप वहाँ देखते हैं कि पहाड़ बिल्कुल सूखे हैं वैसे, और उनकी रॉक जो है वो बहुत ही सख्त है। और आजकल अगर आप जाते हैं तो ख़ास तौर पर जद्दा से मक्का जाती हुई या मक्का से मदीना जाती हुई जो उन्होंने रोड्स बनाए हैं, सुरंगें उन्होंने बनाई हैं, पहाड़ों को काट कर, तो वाक़ई एक आपको नज़र आता है कि कितनी सख्त चट्टानें हैं, बहुत ही सख्त हैं वो। इनको अल्लाह तबारक व तआला फरमाएँगे कि ये भी काँपने लगेंगे, और ये थर-थर काँपते-काँपते क्या बन जाएँगे? ऐसे टीले बन जाएँगे रेत के, महीला, जो बहुत ही नर्म और सॉफ्ट हो जाएँगे। ये किस वजह से होंगे? क़यामत के दिन की दहशत की वजह से, और उसके डर की वजह से, और उसके अंदर जो खौफ होगा, उसकी वजह से होंगे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला गोया उस दौर के कुरैश के और अरब को अल्लाह ताला रिमाइंड करा रहे हैं कि उस दौर को आप याद करें, और जो इंसान ज़िंदगी में समझता है कि वो दौर देखा जाएगा जब आएगा, लेकिन अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, जिनका ईमान क़वी है, वो उससे डरते हैं और अपनी ज़िंदगी को
وہ इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम, या मक्का के लोगों को खिताब किया जा रहा है, बेशक हमने आपकी तरफ एक रसूल को बनाकर भेजा है, शाहिदन अलैकुम, जो तुम्हारे मुताल्लिक एक विटनेस होगा, एक गवाह होगा। और अल्लाह तबारक व तआला जो है बहुत सारे गवाह इंसानों पर पेश फरमाएंगे, और सबसे पहले जो अंबिया कराम अपनी उम्मतों पर के लिए आए थे, वो जो है वो अपनी कौम के बारे में गवाही देंगे, और उन तमाम की गवाही को उम्मत मुस्लिमा टेस्टिफाई करेगी, क्योंकि उनको अल्लाह ने और कुरान ने बताया था। क़यामत के मनाजिर में अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं कि अंबिया किराम आ रहे होंगे, और अंबिया किराम के साथ बास के साथ तो बहुत हम फॉलोअर्स होंगे, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है। लेकिन ऐसे भी नबी होंगे जिनके साथ सिर्फ एक फॉलोअर, उनके साथ पूरी कौम ने उनको झुटलाया होगा, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की अक्सरियत कौम ने झुटलाया था। तो एक नबी के साथ फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नबी के साथ उसका सिर्फ एक फॉलोअर है, और सबसे ज्यादा फॉलोअर जिसके होंगे वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। फरमाया कि हमने तुम्हारी तरफ ये रसूल को भेजा है, तुम्हारे लिए वो विटनेस है और गवाह है। कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, जिस तरह के हमने फिरौन के लिए रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनाकर भेजा था, इसी तरीके से हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे लिए बतौर गवाह रसूल बनाकर भेजा है। अब सवाल ये होता है कि ये कुरान की इब्तिदा है, और इसके अंदर फिरौन और मूसा का जिक्र क्यों यहाँ पर है? उसकी हिकमत यह है कि कुरैश के लोग, चूंकि उनके पड़ोस में यहूदी रहते थे, और उनका यहूदियों के साथ और ईसाइयों के साथ इंटरेक्शन होता था, तिजारत के लिहाज से, मुआशरत के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, तो उनके हवाले से उनको पता था फिरौन कौन था और मूसा कौन। और फिर फिरौन का अंजाम क्या हुआ, और मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में यहूदियों को अल्लाह ताला ने जो है वहां से आज़ादी किस तरह अता फरमाई। तो उनको ये याद दिलाने के लिए, ताकि उनके जहन में ये बात पुख्ता हो जाए, तुम्हारा भी वो अंजाम हो सकता है। फ़असा फिरऔन रसूल फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला। तो क्या हुआ कि फिरऔन ने अपने रसूल मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उसको बहुत सख्त पकड़ा। अखजना के माने हैं उसको उसको गिरफ्त में लिया, वबीला बहुत सख्त। और ये वबाल का जो लफ्ज आप सुनते हैं, ये बिल्कुल उसी का रूट वही है। और वबील से मुराद ये है कि ऐसी बारिश, या वाबिल, ऐसी बारिश कि जो नॉन स्टॉप हो, मूसलाधार हो, बहुत ही भारी हो, और वो थमती न हो, और वो कई रोज तक जो है वो जारी रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सख्त अजाब को तशबीह दी ऐसी बारिश के साथ कि जिसको कोई रोक नहीं सकता, और जिससे कोई बचने का इनका इंसान के पास कोई चारा नहीं है। तो फरमाया कि मैंने उनको बहुत ही सख्त गिरफ्त में लिया, जिसकी वो तवक्को भी नहीं कर रहे थे, और समझ रहे थे कि हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला की जब गिरफ्त आती है तो इंसान को कोई बचा नहीं सकता। फिर फरमाया फकैफ तत्तकून इन कफरतुम, फिर तुम्हें कौन बचाएगा, तुम किस तरह अपने आप को बचा सकोगे, इन कफरतुम, अगर तुमने कुफ्र इख्तियार किया और हमारे पैगंबर को नहीं माना, उसकी नाफरमानी की, तो तुम्हें कौन सी चीज बचा सकेगी उस दिन से। यजअलुल विल्दान शीबा,
विल्दान प्लूरल है वलद की, और जिस दिन के विल्दान का मकसद है कि जो नवखेज बच्चे होंगे, नौनिहाल होंगे, शीरखार बच्चे होंगे, वो क्या बन जाएंगे? शीबा, वो बूढ़े हो जाएंगे। उस दिन जो बच्चे होंगे वो उस दिन की दहशत से बूढ़े हो जाएंगे। और इसके बारे में हमें हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रिवायत कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला आगाज फरमाएगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हिसाब, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म फरमाएगा कि एक तादाद को आप लें और उनको जहन्नम के अंदर आप ले जाएं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि ए अल्लाह, कितनी तादाद आप मुझसे चाहते हैं कि मैं लूं? अल्लाह ताला फरमाएगा कि 1000 में से 999, 1000 में से आप 999 को लेकर आग के अंदर डाल दें, उनको उस तरफ जो है डायरेक्ट करें। तो ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब ये बात होगी तो उस वक्त इस ऐलान को सुनकर जो बच्चे होंगे वो बूढ़े हो जाएंगे। और आप सूरह हज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप उस दिन से डरें, और फिर फरमाया यौम तदहलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अरदअत व तदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरा अन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा। ये दूध पिलाने वाली औरत अपना दूध छोड़ देगी, वो इसके अंदर इतनी सकत नहीं होगी, और जो खवातीन के वो हामिला होंगी उनका हमल गिर जाएगा, और आप लोगों को देखेंगे वो इस तरह की हालत में होंगे जिस तरह उनके ऊपर नशा है, लेकिन वो नशे में नहीं होंगे, लेकिन उस दिन की सख्ती जो है वो ऐसी होगी। तो ये अल्लाह ताला उनको वार्निंग दे रहे हैं। अस्समाउ मुनफतिरुम बिही कान वअदुहु मफऊला। उस दिन आसमान जो है वो फट जाएगा। हम रोजे इफ्तार करते हैं ना, तो इफ्तार का मकसद क्या होता है कि हम चीज को तोड़ रहे हैं। वैसे रोजा जो हमने रखा था, खजूर और पानी से जब हम खोलते हैं तो गोया एक चीज को हम तोड़ रहे हैं, तो इसलिए मुनफतिरुन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमान भी फट जाएगा, सारा निजाम कायनात दरम बरम हो जाएगा। कान वादुहु मफऊला, अल्लाह तबारक व तआला का जो वादा है वो पूरा होकर रहेगा। इसके बाद दूसरा रुकू शुरू होता है। फरमाया इन हादिही तज़किरतुन फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। अब यहाँ पर स्टाइल थोड़ा मुख्तलिफ हो रहा है कि अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया तहज्जुद की नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें तरतील के साथ, और फिर आपको तसल्ली दी कि आप घबराएं मत, सब्र से काम लें, इनको मैं अनकरीब पकड़ूंगा। और फिर फरमाया कि इनका अंजाम क़यामत वाले दिन कैसे होगा। अब इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो बातें हैं, ये कुरान और ये आयतें, ये पैगाम क्या है? तज़किरा है, ये रिमाइंडर है, ये नसीहत है इसके अंदर। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बी सबीला, जो चाहे तो वो अपने रब की तरफ अपना रास्ता इख्तियार कर ले। अल्लाह ताला यहाँ पर फ्रीडम दे रहे हैं, बताने के बाद फ्रीडम ऑफ विल है, कौन चाहता है अल्लाह की तरफ रुजू करे और कौन नहीं चाहता है, ये हर इंसान की अपनी मर्जी है। इसलिए इस्लाम के अंदर यह है कि आप अपने दीन को किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। इन्न रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि व निस्फहु व सुलुसहु। अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि आप रात को क़याम करते हैं, मिन सुलुसल लैलि, रात के तिहाई से कम, व निस्फहु, उसका आधा, और फिर फरमाया कि उसका एक तिहाई। ये आपकी रात को जो क़याम होता है, यानी मुख्तलिफ रातों में बाज़ औक़ात निस्फ होता है, बाज़ औक़ात निस्फ से कम 1/3 होता है,
वताइफतुम मिनल्लज़ीन मअक, और आपके साथ एक ग्रुप भी होता है। यानी देखें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमात के अंदर तहज्जुद की नमाज में उस वक्त कुछ सहाबा किराम शरीक होते थे, तहज्जुद की नमाज में उस वक्त जबकि नमाजें अभी फर्ज नहीं हुई थी। आलिमा अन सयकूनु मिनकुम मरदा, अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में ये बात है कि तुम में से कुछ लोग बीमार होंगे। व आखरून यदरिबून फिल अर्द, अल्लाह तबारक व तआला को इस बात का भी इल्म है कि कुछ और लोग जो हैं वो जमीन में सफर कर रहे होंगे, मुसाफिर होंगे। यब्तगून मिन फضलिल्लाह, यानी वो तिजारत के लिए जा रहे होंगे, नौकरी के लिए जा रहे होंगे। व आखरून युकातिलून फी सबीलिल्लाह, और कुछ और लोग होंगे जो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं। ये तो फ्यूचर की पेशिगोइयां भी हो रही है, और इससे कुछ उलमाए कराम ये भी ख्याल रखते हैं कि इन आयतों से पता चलता है कि ये आयतें मदनी जिंदगी के अंदर नाजिल हुई। अल्लाह आलम बिस्सवाब। और ये तमाम जो है मुमकिनात जो है, मुमकिन सूरतें अल्लाह ताला बता रहे हैं। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिन्हु, तो तुम कुरान में से जो कुछ भी तुम्हारे लिए मुयस्सर है, आसान है, उसकी तिलावत करो। ये जो आयत है फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिन्हु, ये हर मुसलमान के लिए वाजिब है, जरूरी है कि जब वो नमाज पढ़ने लगें तो नमाज के अंदर उस कदर कुरान की तिलावत करें जो उनके लिए आसान हो। यानी सब लोग जो है लंबी तिलावत नहीं कर सकते, जितनी उनके लिए आसान है उसकी तिलावत करें। ये नमाज के अंदर भी है और नमाज से बाहर भी है कि जो आपके लिए आसान हो उस मिकदार को आप नमाज के अंदर और नमाज से बाहर पढ़ें। और दूसरा जो इससे हुक्म मिलता है कि नमाज के अंदर कुरान की तिलावत जो है वो फर्ज है। वो कुरान की तिलावत जो है उसकी इतना आना चाहिए इंसान को, आयतें और सूरतें, कि नमाज में वो पढ़ सके। व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, अब इन दोनों बातों का जिक्र जोड़ के किया है कि आप नमाज को कायम करें और ज़कात को अदा करें। व अक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, और अल्लाह तबारक व तआला के को कर्ज हसना दें। ये जो तीन अल्फाज हैं, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात व अक़रिदुल्लाह, इसके बारे में उलमाए कराम ये कहते हैं कि अगर इसको इस माने में लिया जाए कि ये मदनी में जिंदगी में नाजिल हुई है, तो इसका मतलब है कि ये हुक्म दिया जा रहा है कि जब ज़कात वाजिब हो गई थी, जब नमाज ये पंजगाना फर्ज हो गए थे। अगर उसको मक्की जिंदगी में लिया जाए तो उसका मफहूम ये होगा कि उस वक्त जो नमाज की सूरत थी इब्तदाई, उससे मुराद वो हो। उस वक्त ज़कात से मुराद टेक्निकली ज़कात नहीं होगी, बल्कि ज़कात से मुराद होगा सदका और खैरात। और वअक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना से मुराद ये है कि अल्लाह की राह में कर्ज हसना। और उसकी क्या सूरत थी कि उस वक्त कुछ मुसलमान जो गरीब थे और वो मुसलमान हुए थे और उनको गुलामी से आज़ादी की ज़रूरत थी, या उनको इस्लाम कबूल करने के नतीजे में उनके ख़ानदान ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, तो उनको मतलब है कि मुआशी सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो इससे मुराद ये लिया जा सकता है कि अपने उन भाइयों को कि जो फाइनेंशियली बहुत ही गरीब हैं, डिपेंडेंट हैं, उनकी मदद करें। और उसको अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसको कहा कर्ज़ हसना। ये आम तौर पर हम एक दूसरे की मदद करते हैं, मसाजिद की, मदारिस की, मराकिज़ की, तो उससे मुराद ये है। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह हुवा खैरन व आज़म अजरा, और तुम कोई भी नेकी का काम करोगे तो उसको उसका अजर तुम अल्लाह के यहाँ पाओगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटी सी है, कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बहुत ही उम्दा किस्म का हलवा था, उम्दा किस्म का हलवा था। और उनसे एक
बद्दू आया, उसने सवाल किया, तो आपने उसको वो हलवा दे दिया। आपके पास जो सहाबा किराम थे, उन्होंने अर्ज की कि या अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स देहाती इंसान है, इसको आपने इतना कीमती हलवा दिया, इसको क्या कदर है वैसे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जो जवाब दिया वो बहुत खूबसूरत है। फरमाया इसको कदर है या नहीं है, लेकिन जिसकी खातिर मैंने दिया है, अल्लाह की खातिर, उसको तो इसकी कदर है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि नेकी कोई भी की जाए, उसके बारे में ये नहीं सोचा जाए कि ये छोटी नेकी है या बड़ी नेकी। नेकी नेकी है, वो अल्लाह की रजा के लिए की जाए, और गुनाह गुनाह है, अगर उससे बचा जाए, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, अल्लाह के खौफ से, तजिदूहु इंदल्लाह, उसका अजर आपको अल्लाह के यहाँ जरूर मिलेगा। अगर उसकी अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, रिटर्न दुनिया में न मिले, अल्लाह के यहाँ जो है वो जरूर मिलेगा। हुवा खैरुम व आज़म अजरा, अल्लाह तबारक व तआला से अजर देने में, रिवॉर्ड देने में, अप्रिसिएट करने में उससे कोई बड़ा नहीं है। और फरमाया वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला से मगफिरत का सवाल करो। क्यों यहाँ ये लफ्ज वस्तगफिरुल्लाह फरमाया? इसकी हिकमत ये नजर आती है कि इंसान अगर किसी पे एहसान करता है, तो हो सकता है कि इंसान के दिल में तकब्बुर आ जाए कि मैंने इस शख्स के ऊपर एहसान किया है, इसके साथ हुस्न सलूक किया है, और वो जो एहसान जतलाना है या ये जो एहसास है, वो इंसान की नेकी को ज़ाया कर सकता है। मैं वस्तगफिर, अल्लाह से मग़फ़िरत का सवाल करें कि अल्लाह ताला हमारी नेकी को ज़ाया न फरमाए। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला गफूरुर रहीम है, वो बहुत ही माफ़ करने वाला और बहुत ही रहम करने वाला है। तो ये है आयत नंबर सूरह मुज़म्मल की 20 है, इसके ऊपर हम इख्तिताम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि आज की इस महफ़िल में हमने जिन आयात का मुताला किया है, अल्लाह तबारक व तआला हमको समझने और उन पर गौर व फ़िक्र करने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।